Good afternoon everyone. A very warm welcome to Biocatalyst. आज हम लोग लास्ट क्लास में जितने तक टॉपिक कवर किया था उसके बेस्ड एमसीक्यू से सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो पॉज करके आंसर करना कमेंट सेक्शन में और बाद में मेरे को बोलना कि किसने कितना मार्क्स स्कोर किया है। चलो शुरू करते हैं। The first question was, Robert Hooke discovered the dash part of his cell membrane, nucleus, cell wall and cytoplasm. The correct answer will be yes, cell wall. Next, cell theory was given by Anton van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Schleiden and Schwann, Robert Brown and Rudolf Virchow. And the correct answer will be Schleiden and Schwann. एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से ही दिया गया है क्वेश्चन, तो अच्छे से अगर एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हु गेव ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलाजन? ग्रेग पेलाजिन, अर्नस्ट मायर, श्लेडन एंड श्वेन, जी.एन. रामचंद्र। एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जी.एन. रामचंद्र। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एकदम चैप्टर शुरू होने से पहले एक देखना, जी.एन. रामचंद्र करके उनके बारे में एक हिस्ट्री दिया हुआ है, तो उससे ही लिया गया है। आज के 2025 के नीट का जो पैटर्न था उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एकदम एनसीईआरटी के कहाँ से क्वेश्चन आए। तो इस वीडियो क्लास में और एमसीक्यू सेशन में ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर किया होगा ताकि पूरा एनसीईआरटी रच जाए। तो फिर नीट 2026 में अगर यही पैटर्न फॉलो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। So let's move to next question. The statement omnis cellulae e cellulae, which means all cells arise from pre-existing cells, was given by Rudolf Virchow, Schleiden, Robert Brown, and Anton van Leeuwenhoek. And the correct answer is Rudolf Virchow. Next question. Which of the following cell organelles is non-membrane bound and found in that of the both prokaryotes and eukaryotes? Lysosome, राइजोसोम, सेंट्रियोल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने ये वाली चीज़ कल बहुत बार बोला है कि एक ऐसा ही सेल ऑर्गेनेली है जो बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में प्रेजेंट है, एंड वो क्या है? यस, राइबोसोम। Next question. Now next question number 6. Unicellular organisms are not capable of the independent existence because they cannot perform well or essential functions of life. Option number B, not capable of independent existence but they can perform all the essential and vital functions. Option C, are capable of independent existence and can perform all the essential and vital function. And option D, are capable of the independent existence but they are not perform that of the vital function. And the correct answer will be option C. मैंने कल ही बोला था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल बट दे कैन एबल टू परफॉर्म द ऑल द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड ऑल द वाइटल फंक्शनैलिटीज़ ऑफ लाइफ। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट 7. Cell is the fundamental structural and the functional unit of all living organism is the evidence by the fact that इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सेल जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है हमारे लिविंग बीइंग और ऑर्गेनिज्म के लिए, इस चीज़ का एविडेंस कौन सा फैक्ट देता है? सो ऑप्शन ए, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। Subcellular component can regenerate a whole cell. A cell arises by that of the fusion of the two cells. All cells are that of the topicent. So the correct answer will be option A. Anything less than a complex structure of a cell does not ensure independent living. ये एकदम NCERT का line है। Question number 8. Select the right option which related to that of the Schwann regarding the following statement. मतलब Schwann से related कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो हम लोगों को डिनोट करना है। ऑप्शन नंबर 1, ही रिपोर्टेड दैट द सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करेक्ट।
Cell wall is a unique character of the plant cell. That's also correct. And option 3, body of the plant and animal are the component of the cell and that of the product of cell. ये भी correct है. फिर option number A all correct होगा, सही जवाब. Now let's move to question number 9. The first person who observed and described a living cell was Anton von Leeuwenhoek, Robert Brown, Robert Hooke और Rodolphe Virchow. So correct answer will be Anton von Leeuwenhoek. ये तो एकदम फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट पेज से लिया गया एनसीईआरटी का. द स्मॉलेस्ट सेल इज अगेन माइकोप्लाज्मा. ये भी कल बहुत बार बोला है मैंने, अच्छे से कर देती हूँ. हाँ. क्वेश्चन नंबर 11. इन सम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, फोटोसिंथेटिक क्या बोला है इसमें, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स पिगमेंट्स कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमैटोफोर, क्रोमोप्लास्ट और कैप्सूल. तो करेक्ट आंसर विल बी क्रोमैटोफोर. याद है ना, क्रोमैटोफोर जो फोल्डिंग क्रिएट करता है जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट होता है, यही है वो. नाउ हियर कम्स द मैचिंग. ये फिगर 8.2 से लिया गया है. टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ क्या होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर, 1 से 2 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर और 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर. सो टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर. सो ऑप्शन 1 विल बी बी. हम लोग ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में देख रहे हैं, तो पहले हम लोग बी एंड सी को एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, ऐसे इजी हो जाता है. नाउ वायरस, वायरस का साइज़ क्या है, एकदम जो छोटू सा होता है वायरस, तो ये होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 0.02 से 0.2. सो 2 विल बी डी. वी कैन सी इन बोथ ए एंड डी. Now in PPLO, pleuropneumonia like organism, they have the size of 0.1 micrometer, hence 3 will be C. Here we can clearly see that option D is incorrect, as here it is 3 is equals to A. So the correct answer will be this, 3 is equals to C, and 4 typical eukaryotic cell will be the largest one, that is the 10 से 20 micrometer. Next question, question number 13. Arrange the following cell in an ascending order of their size. साइज से हम लोग ascending order से हम लोग सजाएंगे. ठीक है, पहले क्या बोला है, माइकोप्लाज्मा. माइक्रोप्लाज्मा हम लोग को पता है सबसे छोटू होता है, जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन साइज. तो माइकोप्लाज्मा तो पहले आएगा ही. पहले सॉरी, यहाँ पर क्या बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर. हाँ, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, तो माइकोप्लाज्मा तो आना ही है. सो पहले माइकोप्लाज्मा, दैट इज़ 1. तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी विल बी एक्सक्लूडेड एंड वी विल लुक टू ऑप्शन नंबर ए एंड बी. नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच. एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल, वी ऑल नो. सो ऑप्शन 2 शुड come in the last, and we can see in the option B, option 2 is coming in the last. And now let's differ between the option 3 and option 4. Human RBC, which have the 7 micrometer in size, and bacteria, that is 3 to 5, and hence it will be option 1, option 4, option 3 and option 2. Option B is the correct one. Next, question number 14. Which of the following is not a structure of the prokaryotic flagella? Flagella का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, मैंने कल फिगर भी चिपका दिया था, आप लोगों ने देखा था क्या 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 होता है. वेसल बॉडी, फिलामेंट भी होता है, हुक भी होता है, तो फिर क्या नहीं होता, ऑड वन आउट क्या है इसमें, बी, दैट इज सेंट्रियोल. द जीनोमिक डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया इज सर्कुलर इन शेप, हम लोगों को पता है. 16. द सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज 15S and 30S. ये भी एकदम एनसीईआरटी का है. द डैश अ स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल. मैंने बोला था कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो पता है कि इसका आंसर क्या है, फिम्ब्री. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 18. It is an extension of the plasma membrane into the cytoplasm. ये क्या है, एक extension. It helps in the cell wall formation, DNA replication, helps in the respiration secretion process, and also increases the surface area of the plasma membrane.
इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो कुछ फीचर्स दिया गया है ये कौन सा ऑर्गेनेल का है? न्यूक्लियड, प्लाज्मिड, मेसोसोम और पिलस। द आंसर विल बी मेसोसोम। आई होप इट्स वेरी क्लियर। और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, सो देख लेना अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करते हैं? ये तो बहुत ईजी है, राइबोसोम। Gas vacuoles are found in Bruggen algae, yes. Green algae and purple Vectoridae, yes. Bacillus, no. So the answer will be more than one option is correct. That is option A and B. Gas vacuoles especially aquatic organism में present होता है and Bacillus is not an aquatic organism, hence it will not come in the list. आई होप कि आज का MCQ का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड ऐसे ही टाइप ऑफ MCQ को क्वेश्चन आगे भी लाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से देखना। आज के लिए इतना ही, मिलता है कल के क्लास में।